Hello friends, how are you? Welcome to Japan Study Center. Today we are going to see the chapter of geography, and what is our topic today? Non-metallic mineral here. There is an important point. Non-metallic mineral. You know that what are the non-metallic mineral here? A large number of non-metallic minerals are found in India, but only a few of these are commercially important. You know that there is a few are commercially important here, and there is the limestone, dolomite, mica, and selenite, stalagmites, and gypsum and phosphate. There is the most important non-metallic minerals here, and these minerals are used in a variety of industries such as cement, fertilizer, refrigerator, refactories, and there are electrical goods. There is an important here use of the industry such as cement, is a fertilizer, refactories, and electrical goods here. In this lesson, will be study about the mica and limestone here only. The first here is come here mica. The mica here is here. India is the leading producer in a sheet mica. It was one of the indispensable minerals used in electrical and electronic industry. Till recently, however, it is a synthetic substitute has been reduced our export as well as production considerably. That is the most important here. And the next here, important distribution. The here distribution, third there is a mica is badly distributed, but a workable deposit occur in three principal belt here. There is a three principal. This is the most important belt. They are in the state of the Andhra Pradesh, Jharkhand, Bihar, and Rajasthan. There is the most important mica here found. The Andhra Pradesh, Jharkhand, Bihar, and Rajasthan. Bihar and Jharkhand produce the high quality Rabi mica. You know that the Bihar and Jharkhand is the most important because there is a producing of high quality of Rabi mica. The mica belt in the Bihar and Jharkhand extend up from Gaya district in the west throw of is Hazaribagh in the Mungad district of Bhagalpur and district in the east. Outside this main of belt mica occur in the Dhanbad and Pulamau, Ranchi, and Singhbhum and district here. And the state has supplied more than 80% of the Indian as a output. In Andhra Pradesh, mica is found in a belt as a district here. Rajasthan is there. The Rajasthan is the most important here, the third larger mica producing state. Rajasthan is the third largest mica producing state. The mica is a wearing of zone cover the district of Jaipur, Udaipur, Bhilwara, and Ajmer and Kishangarh here. The quality of mica is inferior is beside these three belt here, as some deposit occur in the Kerala, Tamil Nadu, and Madhya Pradesh also. The mica mining in India was mainly done for the export. The principal importing country was the USA, and which is took about 50% of the export. There is the most important here country was the USA, which is took about 50% of the export here. यहाँ पर आता है धात्विक खनिज. देखिए धात्विक खनिज भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि धात्विक खनिज के अंतर्गत देखा जाए तो चूना, पत्थर, अभ्रक और जो है सिलेमाइट, जिप्सम और फास्फेट आता है. तो इसलिए धात्विक खनिज का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है, और इसमें हम जो चर्चा करेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण बातों पे. ठीक है, धात्विक खनिज के अंतर्गत तो कहते हैं भारत में धात्विक खनिज की संख्या बहुत ही अधिक है, परंतु इसमें से कुछ ही खनिज का जो है व्यापारिक एवं वाणिज्यिक दृष्टि से महत्व रखता है. तो भारत में देखा जाए तो धात्विक खनिज की संख्या बहुत अधिक है, किंतु इनमें से कुछ ही खनिज का जो है व्यापारिक एवं वाणिज्यिक दृष्टि से महत्व रखता है. ये है चूना पत्थर, डोलोमाइट्स, अभ्रक, कैलोनाइट्स, सिलोनाइट्स, जिप्सम और फास्फेट. ये सारे के सारे जो है अधात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं. इन खनिजों का उपयोग जो है विभिन्न उद्योगों में जैसे सीमेंट, उर्वरक, रेफ्रिजरेंट तथा बिजली के अनेक उपकरण सामान के निर्माण में किया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है. और यहाँ पर जो है हम दो के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे. एक तो अभ्रक, एक चूना पत्थर के विषय में यहाँ पर हम विस्तार पूर्वक जानेंगे. तो सबसे पहले हमारे समक्ष आता है अभ्रक. अभ्रक यानी माइका. देखिए माइका कहते हैं भारत के पूरे विश्व में सीट अभ्रक का जो है अग्रणी उत्पादक देश है. यानी देखा जाए तो सीट जो है
वो सबसे महत्वपूर्ण है माइका के उत्पादन देश के रूप में। अब इन तक जो है इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में अभ्रक जो है अपरिहार्य रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। यानी माइका का सबसे अधिक उपयोग जो कहाँ होता है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में की जाती है। परंतु कहते हैं जब से इसका कृत्रिम रूप से संश्लेषित विकल्प आ गया है, जो है माइका खनिज का उत्पादन एवं निर्यात दोनों ही कम हो गया। लेकिन देखा जाए तो इसका जो है बहुत ही कम हो गया, लेकिन समय के साथ इसका जो है महत्व भी और बढ़ भी रहा है। उसके पश्चात अगर हम बात करें इसके वितरण का, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। भारत में धातु अभ्रक का वितरण जो है बहुत ही विस्तृत है, किंतु उत्पादन के दृष्टि से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। निक्षेप 3 प्रमुख पट्टियों में मिश्रित है। यानी देखा जाए तो इसको 3 प्रमुख जो है पट्टियों में सीमित की गई है। ये तीनों पट्टियाँ जो है बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान राज्य के अंतर्गत आती हैं। तो देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है इसके वितरण क्षेत्र है। कहते हैं बिहार और झारखंड में जो है उत्तम कोटि के रूबी अभ्रक का उत्पादन होता है। यानी बिहार और झारखंड बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है अभ्रक के उत्पादन के लिए, क्योंकि रूबी अभ्रक जो है यानी रूबी माइका जो है यहीं पे उत्पादन होता है। बिहार झारखंड के मिले जुले भूभाग में जो है जो माइका खनिज की निक्षेपण पट्टी का जो है विस्तार पश्चिम में गया जिला और हजीराबाग गुजरे होते हुए पूर्व में जो भागलपुर जिले तक फैला हुआ है। यानी देखा जाए तो गया भी जो है एक जिला है जो कि बिहार का एक क्षेत्र पड़ता है गया, वहाँ पर भी जो है अभ्रक का उत्पादन होता है बखूबी। और इसका विस्तार जो देखा जाए तो जो है विस्तार पश्चिम में गया से लेके जो है भागलपुर जिले तक फैला हुआ है। इस पट्टी के बाहरी क्षेत्र में धनबाद, पलामू, रांची एवं सिंहभूमि जिलों में भी अभ्रक के भंडार मिलते हैं। बिहार झारखंड मिलाकर भारत के कुल अभ्रक उत्पादन का 80% भाग जो उत्पादित करता है। देखिए भारत में जो है बिहार और झारखंड जो कि भारत के कुल उत्पादक का 80% भाग माइका का जो उत्पादन होता है इन्हीं क्षेत्रों से होता है। यानी बिहार और झारखंड से ही होता है 80%। आंध्र प्रदेश में अभ्रक की पट्टी जो है नेल्लूर जिले से ही सम्मिलित है। राजस्थान का तीसरा प्रमुख अभ्रक उत्पादन राज्य है। यानी बिहार झारखंड के बाद जो तीसरा नंबर पर जो स्थान आती है वो आता है राजस्थान का। राजस्थान भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस राज्य में जो है माइका खनिज से संपन्न पट्टी का विस्तार जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और किशनगढ़ जिले में फैला हुआ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है जिनको आपको समझना चाहिए। यहाँ जो है माइका गुणवत्ता अच्छी नहीं है। बेशक यहाँ पर माइका मिलती है, लेकिन इसका जो है गुणवत्ता काफ़ी अच्छी नहीं, यानी इसकी अच्छी क्वालिटी नहीं है। इन 3 प्रमुख पट्टियों के अलावा जो है अभ्रक के निक्षेपण केरल, तमिलनाडु एवं मध्य प्रदेश में भी होते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है स्थान अपना। भारत में अभ्रक खनिज का जो है उद्धरण निर्यात लिए होता ही रहा है और भारत के अभ्रक का आयात जो है प्रमुख रूप से कुल निर्यात का 50% भाग होता है। कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका करता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए 50% भाग जो है संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की जाती है आयात, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आयात प्रमुख रूप से जो है कुल निर्यात का 50% अमेरिका द्वारा ही होता है।